Hello students, today we will discuss about zone plate. Zone plate is an interesting application of rational theory, and how this zone plate is constructed, let us see. We will take a white sheet of paper, and on this white sheet of paper we will draw the concentric circles, and the concentric circles which we draw will have the radius in the ratio of, means the, if the radius of the first circle is r, then the radius of the second circle will be root 2 times r, radius of third circle will be proportional to root 3 times r, and so on. So if we take the the ratio of the radii, then it is in the ratio 1 is to root 2 is to root 3 is to root 4, and so on. So why we have taken the radii as the square, as the ratio of square root of the natural number? Because in the last lecture we have calculated the radius of the nth half period zone. तो nth half period zone का radius कितना आता है वो हम देख लेते हैं. देखो, suppose this is the nth half period zone and this is the radius of the nth half period zone, and the perpendicular distance of the plane wave front from this point P is B, and this distance, it is equal to B plus n lambda by 2. So from this triangle we can easily calculate the value of Rn. So Rn square will be equal to B plus n lambda by 2 whole square minus B square. So we will get B square plus n square lambda square by 4 plus B n lambda minus B square. B square से B square cancel हो गया, ये because it is very small, including lambda square term which is very small. So we are having Rn square, it is equal to B n lambda. Okay, so this is the radius of the nth half period zone, and here we can see that this radius, it is directly proportional to square root of n. So that is why we have taken the radius in the ratio of the square root of the natural number 1, 2, 3 and so on. ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, एक वाइट शीट ली है, उसके ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए हैं जिनका रेशियो जो है इट इज़ रूट 1 इज़ टू रूट 2 इज़ टू रूट 3 एंड रूट 4. फिर हम क्या करेंगे, नाउ वी विल पेंट द अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स विद ब्लैक कलर. तो यहाँ पे हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम जो ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन हैं उनको हम ब्लैक कर देंगे, या हम क्या करेंगे, जो इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है उसको हम ब्लैक करेंगे. ठीक है, तो फिर जब हम ब्लैक कर देंगे, उस ब्लैक करने के बाद में मीन्स अल्टरनेट, सपोज मान लो अगर हमने ये जो सेंट्रल हाफ पीरियड जोन है इसको हमने ब्राइट रखा, ठीक है, दिस इज़ ब्राइट, देन वी पेंट दिस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, ये जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है इसको हमने ब्लैक पेंट कर दिया, दिस इज़ ब्राइट, देन इसको हमने दोबारा से क्या किया, ब्लैक पेंट किया. तो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑड नंबर है यानी कि फर्स्ट जो इवन नंबर है, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ फोर्थ हाफ पीरियड जोन, इनको हमने ब्लैक कर दिया है, और जो ऑड नंबर है दैट इज़ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, उनको हमने क्या रखा है, ट्रांसपेरेंट रखा है. तो इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल टेक द फोटोग्राफ ऑफ दिस पिक्चर, एंड that photograph is then reduced to the scale and the negative is taken. So when we take the negative of that reduced scale photograph, then what you will get, you will get the zone plate in such a manner. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is positive half zone plate and this is negative zone plate. तो पॉजिटिव जोन प्लेट कौन सी जोन प्लेट होगी, सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ जोन प्लेट, वन हैविंग द ऑड जोन्स ट्रांसपेरेंट एंड इवन जोन्स ओपेक. ओके, and it is the positive zone plate.
and the zone plate which have the even number of the zones as transparent and the odd zones opaque, it is known as the negative zone plate. So in a zone plate, what we have done, we have either obstructed the odd number of half period zones, or we have obstructed the even number of the half period zone. Now we will see that how this zone plate will act like a convex lens. तो ये जो जोन प्लेट है ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करती है। तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया है, एक जोन प्लेट ली है। दिस इज जोन प्लेट एंड इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज पॉइंट O ऑफ द वेव फ्रंट। सो दिस इज द OM क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट हाफ जोन प्लेट। OM2 क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द सेकेंड हाफ पीरियड जोन। एंड OM3 क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द थर्ड हाफ पीरियड जोन एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखो ये जो M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस है उसको हमने ब्लैक पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपकी लाइट नहीं आएगी। सिमिलरली M3 और M4 के बीच का जो पोर्शन है वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो ब्लैक एंड। तो यहाँ से भी लाइट नहीं जाएगी। तो लाइट कहाँ से जा रही है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से, देन थर्ड हाफ पीरियड जोन से, देन फिफ्थ हाफ पीरियड जोन एंड सो ऑन। और जो इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है, मीन्स सेकेंड हाफ पीरियड जोन, fourth half period zone, sixth half period zone, they are obstructed. Okay, so if we look at the radius here, OM1, it is equal to R1, which is the radius of first half period zone. OM2 is the radius of the second half period zone. OM3 is the radius of the third half period zone and so on. And in terms of wavelength and B, we can write R1 equal to under the root of b lambda, R2 equal to under the root of 2b lambda, then Rn equal to under the root of nb lambda. And from this relation we can find b. What is b? It is equal to Rn square over n lambda. Okay, अब देखो बच्चों, अगर हम पॉजिटिव जोन प्लेट लेंगे तो पॉजिटिव जोन प्लेट में क्या होता है, जो इवन नंबर ऑफ जोन है देयर लाइट इज कट ऑफ, ठीक है। जैसे ये हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है, जो इवन नंबर है सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, वहाँ से लाइट नहीं जा रही है। तो अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करूँ P पॉइंट पे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा P पॉइंट पे कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा और फिर हम वहाँ से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉजिटिव जोन प्लेट। तो एम्पलीट्यूड एक्चुअल में तो P पॉइंट पे हमने पहले निकाला था। तो सभी हाफ पीरियड जोन की वजह से क्या होता है, A1 माइनस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जो A2 A4 जो है उसको हमने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, A1 प्लस A3 प्लस A5। अगर मान लो हम 20 हाफ पीरियड जोन्स ले लें, तो 20 हाफ पीरियड जोन ले लें तो जो लास्ट वाला है इट इज़ 19। तो इफ़ वी ऐड ऑल दीज you will get 10A1 because the amplitudes of the half period zones are nearly equal. A1 is nearly equal to A3, it is nearly equal to A5 and so on. Because the number here we are taking less, means 20 ही जोन प्लेट हमने कंसीडर की है। अगर लार्ज नंबर होता तो जो हायर एम्पलीट्यूड्स है उसका इफेक्ट कम आता। तो अब यहाँ पे देखो जो एम्पलीट्यूड है A0 which we are getting at point P, it is 10 times A1। और अगर मान लो हम हाफ पीरियड जोन्स लें तो उस केस में एम्पलीट्यूड आपका कितना आता है, ये हमने किया था, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स A1।
तो अगर हम इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को कंपेयर करें, यानी कि जो जोन प्लेट में जो इंटेंसिटी मिलेगी P पॉइंट पे, दैट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द हाफ पीरियड जोन्स रिजल्टेंट ऑफ द हाफ पीरियड जोन्स, ऑल हाफ पीरियड जोन्स। ओके, तो कितना एम्पलीट्यूड बढ़ गया है? द एम्पलीट्यूड एट P ड्यू टू this zone plate has been increased 20 times। अगर एम्पलीट्यूड 20 टाइम इंक्रीज हो गया तो जो इंटेंसिटी है वो कितनी इंक्रीज हो गई है? इट इज़ इंक्रीज टू 400 टाइम्स। सो दिस जोन प्लेट कैन बी यूज टू गेट द ग्रेटर इंटेंसिटी एट पॉइंट P by obstructing either the even number of half period zones or by obstructing the odd number of the half period zones. So this is the zone plate, and in the next lecture we will see how this zone plate behaves like a convex lens.